Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Riya, and in this video we will cover about the first chapter of our English literature and language, that is speech sounds. So बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं. स्पीच साउंड्स. किसके स्पीच साउंड्स? इंग्लिश अल्फ़ाबेट की स्पीच साउंड्स. स्पीच साउंड्स किसकी? द इंग्लिश alphabets. And we know that we have 26 alphabets divided into 5 vowels and 21 consonants. We know that we have 26 alphabets in English, which are divided into 5 vowels and 21 consonants. Alright, and these 26 alphabets gave us a total of 44 speech sounds. Alright, these vowel sounds, these 5 vowels give us a 20 vowel sounds. And these 21 consonants give us 24 consonant sound. Means a total of only these 26 alphabets gives us a total of 24 speech sounds, and the 5 vowels give us 20 vowel sounds, which are further divided into 12 vowel sounds and 8 vowel sounds. These 8 vowel sounds are called as diphthongs. What are they called as? Diphthongs or glides. What are diphthongs or glides? Those vowels who contain those words, those alphabets who contains 2 sounds are called as diphthongs or glides, like no. We pronounce it as no, but it's wrong pronunciation. We should pronunciate it like no. That is no, and o. No. Alright, this is its pronunciation. It contains 2 sounds, that is and o. These 12 sounds are called as monophthongs. And these are the single sounds, like k plus you can see here k contains only one sound, that is of but no contains 2 sounds, that is of and o. Now come to some of the words we always pronounce wrong, like tarun. We pronounce it as tarun. What we pronounce it as tarun. But any of the British or American or the people whose native language is English, they pronounce it tarun. What they pronounce is tarun, not tarun. They will not pronounce it as tarun. They pronounce it as tarun. Why? Because according to IPA, and what is IPA? International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. Right. According to IPA, that is International Phonetic Alphabet, English doesn't support the sounds of t, jh, ch, kh, and ana. IPA, the International Phonetic Alphabet, gives us the statement that English doesn't support the sounds of Hindi alphabets, that is t, jh, ch, kh, and ana. Alright, that's why any Englishman whose native language is English, they only pronounce it as tarun, not tarun. It's wrong pronunciation. What we pronounce it? No. We pronounce it as no, but it's the wrong pronunciation. It is called as no. No, naki no. It's pronounced it no, and it's written as its phonetic transcription is this. Alright. Now come to the third word we always pronounce wrong, that is chair. We pronounce it as chair. What we pronounce it as? Chair. But according to the rule, the phonetic transcription, so according to the IPA, whenever R comes, R-E-E-R, comes in the end of any word, it remains silent. कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में आर आएगा, आर ई आएगा या फिर ई आर आएगा, वो कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, बल्कि वो साइलेंट रहेगा. उसकी जगह पे एक अ की साउंड आती है, जो कि इस तरीके से लिखी जाती है, जिसका फोनेटिक सिंबल है ये उसका फोनेटिक सिंबल है. ठीक है. लाइक फादर, हम ये बोलते हैं फादर, लेकिन वो फादर नहीं है, वो फादर है. मदर, सिस्टर, ब्रदर, ना कि ब्रदर नहीं है, ना ब्रदर है, वो ब्रदर है. ऑलराइट. अब आगे हम अभी फिलहाल वॉल साउंड्स करेंगे, और वॉल साउंड में पहले हम मोनोफथोंग्स करेंगे, उसके बाद हम डिफथोंग्स करेंगे. मैं एक बार ये रिकैप करवा देती हूँ. इंग्लिश स्पीच साउंड्स, हमें स्पीच साउंड्स किसकी करनी है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की स्पीच साउंड करनी है. इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? वी ऑल नो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें 5 वॉल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. उन 21 कॉन्सोनेंट्स में जो 21 कॉन्सोनेंट्स है वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, और वो 5 वॉल्स जो हैं वो 20 वॉल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं. इट मीन्स दैट दोज 26 अल्फ़ाबेट्स गिव्स इस टोटल ऑफ 44 स्पीच साउंड्स की. वो जो 26 अल्फ़ाबेट्स है वो हमें टोटली 44 स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करके देते हैं. और जो वॉल साउंड्स है वो फर्दर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, दैट इज मोनोफथोंग्स एंड डिफथोंग्स. जो मोनोफथोंग्स है वो हमारी 12 वॉल साउंड्स हैं, और जो डिफथोंग्स है वो हमारी 8 वॉल साउंड्स हैं. मोनोफथोंग्स होते हैं सिंगल साउंड्स, जिसमें सिंगल वॉल की आवाज़ है, जैसे कि क,
क में अब जब मैं क बोल रही हूँ तो इसमें सिर्फ क के साथ सिर्फ एक सिंगल साउंड, एक वोल साउंड की आवाज आ रही है, डेट इज अ। लेकिन डिफ्थोंग में जब मैं बोलती हूँ, डिफ्थोंग्स को हम अनदर नेम से भी जानते हैं जो कि है ग्लाइड्स। अब डिफ्थोंग्स में अगर मैं बोल रही हूँ नो, वो नो नहीं है, वो नौ है, ऑलराइट। तो उसमें दो साउंड आ रही है, डेट इज अ और औ। तो ये हो गया। अब आईपीए के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स एक एसोसिएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंग्लिश साउंड्स जो हैं वो हिंदी साउंड्स में सपोर्ट नहीं करती है कुछ व्यंजन्स को, कुछ अल्फाबेट्स को, जो कि कौन कौन से हैं, त, झ, छ, ख और अण। जिसकी वजह से हम लिखते टाइम क्या लिखते हैं, तरुण लिखते हैं, लेकिन हमसे तरुण बोलते हैं। लेकिन कोई भी अमेरिकन, ब्रिटिशर, कोई भी पर्सन जिसकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है वो इसे तरुण ही बोलेगा, तरुण नहीं बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि जो आईपीए है उसके अकॉर्डिंग वो जो है त और अण, इन वर्ड्स के साउंड्स को प्रोनाउंस नहीं करता है, यानी त, अण, झ, छ, ख के लिए कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, उसको सपोर्ट नहीं करता। नो, हम लोग को नो बोल देते हैं, फिर से वही नो है। और ये चेयर है, चेयर को हम सब लोग चेयर बोलते हैं, और ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि आईपीए कहता है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आर, आर ई या ई आर आ जाए तो वो प्रोनाउंस नहीं होगा, उसकी जगह पे एक अ की साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसका जो फोनेटिक सिंबल है वो ये है। अब ये जो हमारे स्पीच साउंड्स हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं, यानी वर्ड्स को तोड़ के उनको लिखते हैं, और ये हमेशा स्लैंट लाइन्स के बीच में लिखे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये लिखा था। अब हम फर्दर मूव करते हैं हमारे वोल साउंड्स पे। अब हमारे पास 12, हम पहले पढ़ते हैं वोल साउंड्स। हम स्टार्ट करते हैं 12 वोल साउंड्स या फिर फोनेटिक सिंबल्स वोल साउंड्स के भी। तो सबसे पहला हमारा फोनेटिक सिंबल है छोटी ई के लिए, क्योंकि अ का मैं बाद में करवाऊंगी, बुक में हमारे पास अ के पहले दे रखे हैं और मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मिक्स कर रखे हैं, तो मैं इकट्ठे ले लेके करवाऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे छोटी ई का, इसका फोनेटिक सिंबल है, तो हमारी फर्स्ट साउंड है ई की, छोटी ई की, और ये हम किस में यूज़ करते हैं, लाइक शिट, सिट, फिट, इन वर्ड्स में हम छोटी ई का यूज़ करते हैं। अब आ जाओ सेकंड बड़ी ई पर, इसका फोनेटिक सिंबल होता है ये, इसका फोनेटिक सिंबल है ये हम यूज़ करते हैं लाइक शीप, कीप, ठीक है, सीट, फीट, इनमें हम इसको यूज़ करते हैं। मैं इसके बाद में बताऊंगी। अब थर्ड साउंड आती है हमारे पास अ की, ये वाला हम उसका फोनेटिक सिंबल लिखते हैं, ठीक है, लाइक कम, बट, शट, कप, ऑलराइट, रफ, इन सब में। फोर्थ है हमारे पास अ की ही साउंड है, फिर से फिफ्थ भी हमारे पास अ की ही साउंड है, लेकिन अ की हमारे पास कितने साउंड्स हैं, 3 साउंड्स हैं अ की। फर्स्ट तो ये वाली हो गई, सेकंड है हमारे पास अ की साउंड ये वाली, और थर्ड साउंड है हमारे पास अ की ये वाली। अब इनमें फ़र्क क्या क्या है अगर कभी भी अ जो है ओ से, ओ यू से या फिर यू से अ का साउंड निकले, अ का साउंड प्रोड्यूस हो, यानी कभी भी अ से, ओ से, यू या ओ यू से अ का साउंड प्रोड्यूस हो, तो ये वाला अ आएगा, ये वाला सिंपल आएगा। ओके, कभी भी किसी भी वर्ड के लास्ट में चेयर, ऑलराइट, लाइक चेयर, सिस्टर, अवे, ऑलराइट, देयर, अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स के तौर पे अ आए या फिर लास्ट में आर ई या ई आर आई, तो वहाँ पे प्रीफिक्स के तौर में ए, प्रीफिक्स के तौर पे ए आई, यानी की साउंड है किसी वर्ड के स्टार्टिंग में, या लास्ट में आर ई आर या आर ई आई, तो वहाँ पे ये वाला अ यूज़ होएगा। अब ये वाला अ बचता है, ये वाला अ अगर लाइक वर्ड शर्ट, सॉरी, शर्ट, टर्न, अगर कभी भी वर्ड के बीच में, यानी किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले, किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है, तो वहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, अब हमें अ के 3 रूल्स पता चल गए हैं कि अ कब कब आएगा। फर्स्ट, जब भी ये वाला अ तब यूज़ होगा जब ओ से, यू से या ओ यू से अ का साउंड प्रोड्यूस हो। ये वाला तब यूज़ होएगा जब किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में प्रीफिक्स के तौर पे अ आए, लाइक अवे, अलोन, और किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आर, आर या आर ई आए, तो ये वाला अ यूज़ होगा। नेक्स्ट, अगर किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो वो साइलेंट रहेगा, वो यूज़ नहीं होगा, उसकी जगह पे ये वाला हमारा जो अ है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी ओ की साउंड्स पे। ओ हमारे पास दोनों साउंड्स ओ की आती हैं। छोटे ओ की साउंड होती है हमारे पास ये, और बड़े ओ की साउंड होती है हमारे पास ये। ऑलराइट, अब ये जो छोटा ओ है हमारा, इसको हम किस किस में यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं वुड, पुट, गुड, जिसमें हमारे पास छोटे ओ का साउंड है, लाइक हम गुड बोलते हैं, ना कि गुड, गुड नहीं बोलते, हम गुड बोलते हैं, गुड, ना कि गुड, गुड नहीं बोलते, हमसे गुड बोलते हैं, वुड, हमसे वुड बोलते हैं, वुड नहीं बोलते हैं। ठीक है, बड़ा ओ वहाँ पे आएगा जहाँ पे ओ की थोड़ी ज़्यादा खींची जा रही हो, लाइक मून, शूट, समझ रहे हो, मून, शूट,
पूल, कूल। अब इनमें क्या हो रहा है, बड़ी यू की आ रही है, लाइक कूल। हम इसे बोलते हैं कूल, कूल थोड़ी ना बोलते, हम कूल बोलते हैं, कूल। अगर हम नॉर्मल भी यूज़ करना है, शी सो कूल, हम कूल नहीं बोलेंगे, हम बोले शी सो कूल मैन, शी सो कूल। कूल बोलते हैं, कूल नहीं बोलते हैं। पता चल गया। अब एक है हमारे पास, एक आ जाती है हमारे पास अ की साउंड, अ नहीं अ। अब किसके आ जाती है हमारे पास साउंड, अ की साउंड आ जाती है। जैसे कि इसे हम ऐसे लिखते हैं, अ लाइक फार, कार, एंड कैट, सॉरी 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 सॉरी, ये कैट वैट नहीं आएगा, एक मिनट। हाँ जी गाइस, सो जहाँ पे भी अ का साउंड है, लाइक फार, कार, फादर, ठीक है। जहाँ पे अ का साउंड है, क्योंकि फादर को हम कैसे लिखते हैं, फादर, फादर, र नहीं बोलेंगे, ये याद रखना, फादर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे र क्या है, साइलेंट है, लेकिन हम इसे बोलेंगे फादर, फादर, फा, हम फा जहाँ पे भी लगाते हैं, लाइक फार, कार, ऑलराइट, फार, हम ऐसे लिखते हैं ना इसको। तो यहाँ पे जहाँ पर भी अ का साउंड प्रोड्यूस हो, वहाँ पर आ का, ना कि अ का नहीं, आ का, फार कार। यहाँ पे आ का साउंड प्रोड्यूस, जहाँ पे आ का, वहाँ पे ये वाला मोनोफ्थोंग या फिर हम कह लें फोनेटिक साउंड, फोनेटिक सिंबल आएगा। नाइन्थ पे हम आ जाते हैं। अब नाइन्थ है हमारा अ का, नाइन्थ हमारा अ का, अ का सिंबल है हमारे पास ये वाला, ये वाला सिंबल हमारे पास है अ का, यानी उल्टा ए। इसे हम तो बोलेंगे लाइक गॉट, ऑट का जब यहाँ पे आए ना गॉट, रुक जाओ, गॉट, कॉट, ऑन, ठीक है। जब अ का सिंबल हमारे पास आए तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, लाइक ऑट, ऑट, ऑन, कॉट, ठीक है, गॉट। जहाँ पर हमारे पास ये सभी सिंबल्स आए तो वहाँ पर हम इसको, इस आ को यूज़ करेंगे। और इस आ का सिंबल क्या है, ये है। टेंथ है अब हमारे पास ओ, ये वाला ओ, इसका सिंबल है ये उल्टा सी और ये दो डॉट्स, जो हम संस्कृत में विसर्ग वो नहीं लगाते, संस्कृत में लास्ट में दो डॉट्स लगा देते हैं उसको। और इसमें हम बोलेंगे लाइक सो, ओ, फ्लो, कॉल, पोल, ऑलराइट, ये यहाँ पे यूज़ होगा। आगे समझ में। अब 11th पे हम आ जाते हैं। 11th हमारा अब आएगा ए। अब ये दो साउंड जो है हमारी वो ए के आएंगे, एक छोटा ए और एक बड़ा ए। छोटा ए हम ऐसे लिखेंगे और बड़ा ए यानी एक अ बनाकर फिर उसके साथ चिपका के ई, ठीक है। लाइक ये अ है, इसे हम ऐसे बोलते हैं, ये कहते तो हम अ की साउंड लेकिन ये ए की साउंड होती है, ठीक है। हम इसे कंसिडर करेंगे, शायद आप लोगों के भी टीचर्स ने आपको बोला कि ये अ है, अ, लेकिन ये अ ना हो के ये अ ए है, लाइक कैट, सॉरी बेड, एड, ठीक है, बेड, फेड, टेन, पेन, ठीक है। और ए ई में लाइक कैट, रैट, फैट, मैट। कन्फ्यूजन है यहाँ पे, दोबारा देख लो, मुझे पता है समझ में नहीं आया अच्छे से। टीचर्स ने बोला कि ये ए की नहीं अ के साउंड है, लाइक अ, बेड, एड, बेड, फेड, टेन, पेन, एड। अचानक से कट लग रहा है उस अ की साउंड में, लेकिन ये अगर हम देखें तो ये ए की ही साउंड होती है, अ की साउंड ये नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बेड, ब छोटा ए और ड, फेड, फ ए ड, हम वहाँ पे ए लगाते हैं, अ नहीं लगाते। फड थोड़ी ना लिखते, फेड लिखते हैं, ठीक है। टेन लिखते हैं, पेन लिखते हैं, समझ रहे हो। हम उन्हें बेड, बेड ना कि बड, बड थोड़ी ना लिखते हैं, हम बेड लिखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ए यहाँ पे जैसे कि कैट, रैट, फैट, मैट, जो कि बड़ा ए है वो यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों को ये डिफ्थोंग्स का इंट्रोडक्शन और 12 वोवल साउंड्स समझ में आए होंगे। हम डिफ्थोंग्स और फोनेटिक सिंबल्स जो है कॉन्सोनेंट्स के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी थर्ड वीडियो होगी स्पीच साउंड्स के ऊपर, उसमें हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया हो अच्छे से। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Share the video, subscribe the channel if you're new to the channel, and like the video if you like it. So meet you in the next video. Bye bye.